Hello everyone, this is Dr. Anju Singhal. Once again I am before you. This time I am going to discuss with you MCQs of Lesson 1 of Book Part 2. The name of this chapter is Challenges of Nation Building. This is a very important lesson from the point of view of its context. As you all know already, Sardar Vallabhbhai Patel and national integration is newly added topic to this lesson. I have already shared PPT of this lesson on my channel. To see my all videos, subscribe my channel and share and like also. Guys, one thing is very important related to this chapter, and that is study of map of India, which are provided to you in your political science textbook. यहाँ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप मैप्स की स्टडी बहुत ध्यान से करें, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि हमें ये भी देखना है, लोकेशन देखना है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे देश का क्या रूप था और आने वाले समय में वो कैसे कैसे बदलता चला गया, ये भी क्योंकि हमें आगे जाके देखना पड़ेगा। चलिए अब हम अपनी MCQ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो हेयर वी हैव आवर क्वेश्चन नंबर 1. I will just tick mark the correct one before you only. So, very easy question. I have started with how many challenges India faced immediately after independence. So, this is a very simple answer, but you must know it. And the answer is option B, that is 3 challenges. ये चैलेंजेस मैं आपसे अलग भी डिस्कस करने वाली हूँ बाद में, क्योंकि ये आपको पता होने चाहिए, आपके टिप्स पर होने चाहिए. So next question comes, which one among the following was not a challenge that India faces immediately after independence? तो ऑब्वियसली इसमें 3 तो मैंने आपके चैलेंजेस ही डाल दिए, एक डिफरेंट डाला है, तो मैं आपके सामने सारे पढ़ती हूँ. A. Ensure the development and well-being of entire society. ये तो चैलेंज था बहुत बड़ा. B. Establish successful monarchy. What do you think? हमारे देश में मोनार्की इस्टेब्लिश करने का तो कोई भी इरादा किसी का था नहीं, तो इसमें जो हमें रॉन्ग तो मिल ही गया है, यानी कि दिस वॉज नॉट द चैलेंज. सो करेक्ट आंसर तो हमें यहाँ मिल गया. हम बाकी 2 भी पढ़ लेते हैं. सी. शेप अ नेशन दैट वॉज यूनाइटेड. दैट्स वेरी ट्रू. डी. स्टैब्लिश डेमोक्रेसी. सो गाइज, तो इट्स करेक्ट आंसर वॉज बी. मैंने इस तरह से ये डाल दिया है, और क्या पता एग्जामिनर सेटर कुछ और डाल सकता है आपके सामने, तो आपको उसे पहचानना होगा. Question number 3. According to two-nation theory, India consisted of not one but with 2 people. कौन कौन से? A. Hindus and Sikhs. B. Jains and Muslims. C. Hindus and Muslims. D. Hindus and Christians. So which one is the correct one? Which 2 type of people? Hindus and Muslims. Option C. Question number 4. In 1951, Muslim population in India is estimated कितना परसेंट? 12%. उस समय हमारे देश में मुस्लिम पॉपुलेशन 1951 में it was 12%. Next question comes, number 5. Who wrote the Dawn of Freedom? Was Amrita Singh,
फैज़ अहमद फैज़, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल. Which one is the correct one here? Option B. Faiz Ahmad. Faiz is the correct answer. Question number 6. Khan Abdul Ghaffar Khan was undisputed leader of which province in India? This is really worth knowing question, and its answer you must know. Was it Hyderabad, NWFP, Northwestern Frontier Province, C. Kashmir, D. Junagadh? So its correct answer is NWFP. Guys, ये जो टर्म है ये आपको फुल फॉर्म इसकी पता होनी चाहिए. Question number 7. Gandhiji was in which city at the time of Independence Day celebration on 15th August 1947? जब सब लोग दिल्ली की तरफ भाग रहे थे, देश की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस समय गांधी जी इंडिया के किस सिटी में थे? He was in Kolkata. Question number 8. Mahatma Gandhi was shot dead on. He was assassinated on 30th January 1948. Just remember this date. Question number 9. Who was known as Frontier Gandhi? अभी हमने खान अब्दुल गफ्फार खान के ऊपर बात की है. So he was known as Frontier Gandhi. Khan Abdul Ghaffar Khan. Question number 10. Which one among the following statements about the partition is incorrect? देश का पार्टीशन हुआ. अब आपके सामने स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, जो उसमें से गलत है उसको आपको बताना है. पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज द आउटकम ऑफ द टू नेशन थ्योरी. ठीक है. पंजाब एंड बंगाल वर द टू प्रोविंसेस डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन. ये भी ठीक है. ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान वर नॉट कंटिग्यूनस. ये भी ठीक है. And the last one is the scheme of partition included a plan for transfer of population across the border. No, this is the correct option of this question. Do you understand this question? Question number 11. Andhra was announced as a separate state in the year 1952. गाइस, इस वाले लेसन में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत हैं, यानी कि जो आपको बाय हार्ट लर्न करने हैं इनके ईयर्स. तो इसमें समझने वाली बात तो कोई होगी नहीं, है ना. इसमें ये भी नहीं हम कह सकते ये वाला ऑप्शन आउट कर दो, ये वाला ऑप्शन आउट कर दो. इसमें केवल ये चीज़ होती है, हम 1952 का आप क्या निशानी लगा सकते हैं. इसके लिए भी एक तरीका होता है कि भाई आपके घर में कुछ 1952 में हुआ है, तो आपको उस चीज़ से उसको रिलेट करके आप उसे लर्न कर सकते हो. आंध्रा में ए से किसी का नाम है, लाइक इन डेट्स को हम इस तरीके से लर्न कर सकते हैं. तभी ये डेट्स आपको अच्छे से याद में रह पाएंगी, क्योंकि बहुत सारी हैं, बार अलग अलग स्टेट्स बनते रहे और अलग अलग आपको ये डेट्स याद करनी पड़ेंगी. तो यदि आप इन्हें अच्छे से याद कर सकते हैं तो आप इसे लर्न कर लें, इसे अपने तरीके से समझ सकते हैं, तो आप इसको समझें. सो नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 12. Who among the following leaders played a prominent role in integration of princely states with India? इसका करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल. ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए और यही हमारा न्यूली इंक्लूडेड टॉपिक भी है हमारे सिलेबस में. और इस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पर मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाई है, पीपीटी बनाकर इसकी डाली है अपने चैनल पर.
जस्ट गो थ्रू दैट ऑल्सो, तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सारे फैक्ट्स पता लग जाएंगे, है ना। ये वाली बात तो आपको पता ही होगी कि ये वाली बात आई कैसे, कि भाई ये प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में जुड़ना है। ये क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने ये वाली बात डिक्लेयर की कि हम आपको आज़ाद कर रहे हैं, तो हम हमारे देश के जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, आगे इस पर एक क्वेश्चन आएगा कितने प्रिंसली स्टेट्स थे, तो 565। उनको यदि वो चाहते हैं इंडिया में मिलना, और यदि वो चाहते हैं पाकिस्तान में मिलना, और यदि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, तो ये प्रोविज़न रखा गया था। तो इस तरीके से इतने सारे स्टेट्स, यदि देश का क्या हाल होता यदि ये स्टेट्स, इन्हें मिलाने के लिए बहुत कोशिश किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और सबको मना भी लिया। 2-3 ही रह गए, जिसका एक रिज़ल्ट हमारे सामने कश्मीर का आ ही जाता है कि राजा हरि सिंह ने मना कर दिया था। वो उधर तो मिलना चाहते नहीं थे और रहने भी चाहते थे इंडिया की तरफ, लेकिन उस समय वो अलग से ही सेपरेट ही रहे। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ईयर मणिपुर बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? So it was in 1948. Question number 14. Identify the Congress leader and the veteran Gandhian who went on indefinite fast that led to his death after 56 days. इसका एक क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू 99%, 100 नहीं तो 99% तो ज़रूर आएगा। तो ही वॉज वेरी फेमस, नाम इनका आपको याद रखना पड़ेगा। He was Poti Sri Ramulu, right? This is option B. Question number 15. By mistake I have repeated it, so I will skip it. Question number 16. Meghalaya was carved out from which of the following states? ये भी आपको ध्यान रखना है, आपके NCERT बुक में से ही लिया ये क्वेश्चन मैंने, और उसमें ये दिया गया है। सो इट वॉज आसाम। मेघालय वॉज कार्व आउट फ्रॉम आसाम इन विच ईयर? 1972, राइट। क्वेश्चन नंबर 17. स्टेट ऑफ गुजरात वॉज कार्व आउट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ये तो आप पहचान जाएंगे, महाराष्ट्र, बॉम्बे, वेस्ट बंगाल, पंजाब। तो इट वॉज बॉम्बे एंड इट इन द ईयर 1960. Question number 18. When was West Bengal formed? So West Bengal was formed on 1st January 1956. Okay. Now we come to question number 19. Which two languages were spoken in Bombay state before it was divided in 1960? So कौन सी लैंग्वेजेस हो सकती हैं? गुजराती एंड मराठी, ओडिया एंड मराठी, कोंकणी एंड पहाड़ी, मराठी एंड पंजाबी। पहचान गए? इट वॉज ए, गुजराती एंड मराठी। क्वेश्चन नंबर 20. हरियाणा वॉज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बिफोर 1966? सो हरियाणा वॉज पार्ट ऑफ पंजाब, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश। सो इट्स करेक्ट आंसर इज पंजाब। क्वेश्चन नंबर 21. Who among the following leaders propounded two nation theory? ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आज हम दो डिवाइडेड नेशंस में रह रहे हैं, किसकी थ्योरी थी ये? हम सभी को पता ही है, नो कन्फ्यूजन। ही वॉज मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22. नेम द लीडर हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल आफ्टर द खेड़ा सत्याग्रह एंड द बारडोली सत्याग्रह। अभी केबीसी में बारडोली सत्याग्रह का क्वेश्चन मैंने देखा है।
तो ही वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल. Question number 23. How many princely states consisted at the time of independence of India? अभी आपको बताया है मैंने और आपको याद भी रखना पड़ेगा. 565. Question number 24. Tryst with Destiny. Tryst with Destiny is a famous speech of which of the following? कौन सी स्पीच है? आप पहचान गए होंगे. किसकी स्पीच है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. सो ट्राइस्ट विद डेस्टिनी इज़ द स्पीच ऑफ जवाहरलाल नेहरू. और ये वो स्पीच है जो उन्होंने इंडिपेंडेंस जिस रात हमको मिली है उस रात जो उन्होंने लाल किले से जो बोला था उस स्पीच का को ही है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी. Right. Now we are here at question number 25. Which of the following countries had an issue related to the migration of Rohingyas? ये जो है क्वेश्चन 2019 में आया है एग्जाम में. तो यू मस्ट नो इट. वैसे भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स तो आपको करने ही होंगे. इसका आंसर है म्यांमार. Poets and writers have described partition as. पार्टीशन को पोएट्स और राइटर्स ने क्या नाम दिया कि ये क्या था? डिवीज़न ऑफ वन कंट्री इनटू टू, डिवीज़न ऑफ हार्ट्स, डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टी और डिवीज़न ऑफ पीपल. व्हाट यू से? इट वॉज डिवीज़न ऑफ हार्ट्स. लोगों के हार्ट्स ब्रेक हुए बहुत ज़्यादा. लोगों को ज़बरदस्ती इधर से उधर छोड़ करके अपने अपने लोगों को जाना पड़ा. सो इसको पोएट्स एंड राइटर्स ने क्या पुकारा है? डिवीज़न ऑफ हार्ट्स. सो कन्फ्यूजिंग है. यदि आप ध्यान से देखें, भाई कंट्री दो में भी डिवाइड हुआ, प्रॉपर्टी का डिवीज़न भी हो गया, पीपल का डिवीज़न भी हो गया, बट यहाँ सवाल है पोएट एंड राइटर्स ने क्या पार्टीशन को डिस्क्राइब किया है. तो इसका आंसर है डिवीज़न ऑफ हार्ट्स. क्वेश्चन नंबर 27. वाई वॉज स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंटेड? ये भी एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा. तो क्यों किया गया? टू फॉर्म आंध्र प्रदेश एज अ सेपरेट स्टेट, टू लुक इन टू द क्वेश्चन ऑफ रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स, to hear cases of linguistic states, to solve problem of Manipur. क्या लगता है आपको? इसका आंसर है ऑप्शन सी. कैसे? इसे समझना भी पड़ेगा कि भाई इसको इसीलिए इस कमीशन को बिठाया गया कि भाई देश को, अब देश को देखना पड़ेगा ना कि किस तरीके से अपने देश को संभाला जाए, है ना. So, to look into the question of redrawing of the boundaries of states. अब जो रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बिठाई गई, तो when did सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन? इसी के साथ ये क्वेश्चन भी जुड़ जाता है. तो इट वाज इन द ईयर 1953 में इसको बिठाया गया. और फिर इसने अपना कब वो दिया, जैसे कहते हैं ना, अपना रिजल्ट सुनाया. तो ये एक इम्पॉर्टेंट है बात जानने वाली. ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1956, 53 से वो स्टडी करता रहा, है ना, तब हमारा द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हो पाया था. टाइम लगता है हर चीज़ को स्टडी करने में, सोचने समझने में, है ना. सो एक ये भी क्वेश्चन है, हु वॉज फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल. उनसे 3 क्वेश्चन हमारे जुड़ जाते हैं. हु वॉज होम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल. हु इज़ कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना. मैंने तो एग्जाम्पल के तौर पर इसमें आपको एक दिखा दिया. तो मेरी उस पीपीटी में आपको सारे सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे.
अब जैसे कि आई ऑलवेज डिस्कस विद यू इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेसन, सो इन द लास्ट दैट इज आई एम गोइंग टू डू, क्या आपको जानना चाहिए, WSF, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, इट स्टैंड फॉर वर्ल्ड सोशल फोरम। क्या है ये? दिस इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग टुगेदर a wide coalition of human rights activists, environmentalists, and women activists. So this is World Social Forum. क्या हमको अवश्य याद रखना है? It's very necessary to keep in our mind. जो आपको मैंने शुरू में बताया था, आपको always remember always 3 challenges that India faced just after independence. Challenge to shape a nation, challenge to establish democracy, challenge to ensure the development and well-being of the entire society. ये challenges जो हम आज तक जिन्हें पूरा करने में लगे हुए हैं, उस समय तो हमारा बेबी देश था, छोटा चाइल्ड, तो उस समय में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत थी। धीरे धीरे ये सब चीज़ें अभी भी हमारे सामने सर उठा के खड़ी हैं कि किस तरीके से हम इस देश को एक अच्छी शेप दे सकें, प्रॉपर डेमोक्रेसी हमारी कहलाए, है ना, डेवलपमेंट हो सके पूरी सोसाइटी का, है ना। तो ये चीज़ें हमारी अभी चली, लेकिन दैट वाज द इनिशियल चैलेंजेस बिफोर द गवर्नमेंट, बिफोर आवर लीडर्स। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ जाता है जिसको कि आपको समझना है, ये लेसन इसी पे डिपेंड करता है, व्हाट वाज टू नेशन थ्योरी। तो पहली बात तो ये, टू नेशन थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना टू क्रिएट सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स। उन्होंने मुस्लिम के लिए उन्हें सेपरेट स्टेट चाहिए था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी विच वाज एडवांस्ड बाय मुस्लिम लीग, इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट वन बट 2 पीपल। ये जो उन्होंने बात कही थी और ये कहते ही रहे कि इंडिया में एक तरह के लोग नहीं हैं, इंडिया में 2 पीपल रहते हैं, हिंदूज एंड मुस्लिम। और इसीलिए दैट इज़ वाई इट डिमांडेड पाकिस्तान। इसी वजह से उन्होंने कहा कि हमें अपना एक सेपरेट देश चाहिए, अ सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स। सो गाइस, खूब ध्यान लगा के पढ़िए, छोटी छोटी बातों को छोड़िए मत, लेसन का एक एक लाइन को ध्यान से देखिएगा, है ना। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मेरे PPTs वाले वीडियोज़ हैं उसके अंदर व्हाट्सएप चैनल दिया गया है। इफ़ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी, यू कैन join me on my WhatsApp link, then we will discuss in detail. Okay, all the best, take care, thank you.